أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں. جو ہمارا جو پروگرام ہے بہار رمضان، اس حوالے سے پہلی ماہ رمضان سے سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ آج بھی ایک پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے مہمان علی جناب خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر معروف مرزا صاحب اس وقت ہمارے درمیان اس لائیو پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے اس وقت تشریف فرما ہیں، جو یہاں سے ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت اور ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے اور یہ ایک بہتر پروگرام ہونے کی ہم امید کرتے ہیں اپنے ناظرین سے. آئیے ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. علیکم السلام. جناب کیسے ہیں آپ؟ شکر خدا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور روزے اچھے چلے آپ کے؟ الحمدللہ. جی میرے بچوں کے روزے سب کے چلنے ڈاکٹر نے منع کر دیا. اچھا جی اللہ آپ کو شفا دے. بڑے اچھے کام اور کارنامے آپ انجام دے رہے ہیں اور سب اس سے واقف ہیں. تو جناب ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کو اور پہلا سوال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جناب کہ اسلام میں روزے کے فائدے اور سماج یعنی سوسائٹی کے لوگوں پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس حوالے سے میرا سوال ہے. اسلام میں روزے کے فائدے، جی اسلام میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو فائدے ہو، سب میں فائدے ہی فائدے. جی اب آپ کو فائدے گرانے کے اگر میں سنیں، سب سے بڑی بات جب آپ کبھی بھی کوئی نئی چیز بازار سے بھی لینے جاتے ہیں جی تو اس کا کوئی وارنٹی پیریڈ ہو. جی تو اللہ کے نظام میں بھی وہی چیز ہے. سال میں ایک بار 20 دن آتے ہیں، 11 مہینے کے میں کام کرتے کرتے کچھ گرد، کچھ غلط لوگوں کی سنگت، اس سے اگر آپ توبہ کرنے کا موقع نہیں نہیں کر پائے تو اللہ نے 12ویں مہینے کے 30 دن کے روزوں میں آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیے ہیں تو آؤ ہم نے دروازے کھول دیے، معاف کریں گے. اور جو گناہ نہیں کرتے ہیں وہ ان کے لیے یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ اللہ ان کو گناہوں سے دور کرتا ہے. اور ایک میسج سب سے بڑا جو اس کا یہ ہے کہ انسان کا دل بہت سافٹ ہو جاتا ہے. اور جس طرح سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے لیے تو ہمارے باڈی کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح کہ جب ہم سال میں کوئی اپنی گاڑی کی سروسنگ کرانے جاتے ہیں تو پوری اوور ہالنگ ہوتی ہے. تو میری باڈی بھی ایک گاڑی ہے. یہ سال بھر میں 11 مہینے کے بعد اس کو ضرورت ہے اس کی اوور ہالنگ ہونا چاہیے، چاہے دماغ ہو، چاہے دل ہو، چاہے پورا کمپلیٹ. تو یہ گرد جھاڑنے کے لیے اور اپنے کو اللہ کے قریب رکھنے کے لیے اللہ نے کھل کے کہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تو ہماری عبادت. تو وہ ایک ایسا اسپیشل موقع دے دیتا ہے کہ آؤ یہ پورے مہینے عبادت کرو، ہمارے قریب آتے جاؤ اور ہم سے رہنے کی امید کے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی. جناب ایک اور بھی سوال اس میں ہم یہاں پہ سے جوڑنا چاہیں گے کہ روزے کے ذریعے صبر، اثار، محبت اور اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو روزہ ہر مذہب کے لیے اگر ہم بات کریں تو بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے لیے روزہ جو ہے وہ بھائی چارے کا اور ایکتا کا پیغام دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال بھی ہے اور بہت اہم سوال بھی ہے یہ، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے دل میں، کیونکہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ کھانا پینا ترک کر دیا. روزے کا مطلب یہ کہ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے سننے کا بھی، کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا اوپر بھی روزہ ہے. ایون رویا آپ کا ایسا پورا جسم ہو جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اور اب جا کے وہ ایک روزہ کہلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کا کسی کو آپ کے انگلی سے بھی تکلیف نہ ہو، آپ کے جسچر سے بھی اگر
किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुकम्मल रोजा होता है। और ये इतना बड़ा पीस और हार्मोनी का एक मैसेज देता है कि जब आपका दिल खुद इतना सॉफ्ट और स्पोकन हो जाता है, मुलायम हो जाता है, आपकी बात करने की आपका अंदाज बदल जाता है, और फिर एहसास होता है कि आप इस समाज में ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके पास नहीं है तो वो न जाने सालों कैसे लगे रहते होंगे, और हमने तो सिर्फ 12 घंटे का रोजा रख के उस दिन को प्यास की एहसास किया है। उस एहसास का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि हम बेहिसी के दौर में थे, और वो एहसास जो है हमारा एक दूसरे के करीब लाता है। अगर कोई पड़ोस में भूखा है तो ये मेरा फर्ज है कि वो भूखा ना, कोई प्यासा अगर आपके दर पे आ गया वो प्यासा ना रहे। इस वक्त एक छोटी सी चीज है, इस वक्त हम कहते हैं हर रोजेदार और हर ये कहने को तो हम कह रहे हैं कि ये इस्लाम में रोजा है। रोजा हर घर में, कहीं व्रत कह दिया जाता है, कहीं आपका फास्टिंग कह दी जाती है, हम लोग रोजा कहते हैं। लेकिन इसका असली मतलब तो आप ये देख लिए कि मैं तो समझता हूँ, मैं आपके इस चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त की मई जून की गर्मियों में आप देखिए कि जो लोग बेचारे लॉकडाउन की वजह से निकल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मुहर्रम में सभी लगाइए। आप इस वक्त आम जन के लिए हाईवे के ऊपर कुछ न कुछ पानी का इंतजाम करके जो गुजर रहे हैं श्रमिक, उनको अगर आपने पानी पिलाया तो बुरा खुदा कह रहा है तुमने हमारी प्यास बुझाई। अगर उनको खाना खिलाया तो खुदा कह रहा है तुमने मुझे खाना खिलाया। और इससे अच्छा खाली हम अपने मजहब के को सीधा करके और एक ब्रॉडर सेंस में, लार्जर उसमें अगर हम बात करें तो ये इस समय ये इम्तिहान है हर इस्लाम के मानने वालों का, जो पूरी दुनिया में इस वक्त के हालात हैं, जो बेचारे गरीब लोग इस वक्त सफर में बढ़ चढ़ के आइए। आप ज़कात को कहते हैं तो ज़कात जब आप की ज़कात है, और इस वक्त देश को और पूरी दुनिया को जरूरत है उन बस लोगों की कि वो बढ़ चढ़ कर आए और कर रहे हैं। और उसमें ये मौका जो हमारा रमजान का है, इसमें तो दिल खोल के हर इंसान जो काम कर रहा है, और अल्लाह ने कहा है तुम किसी के साथ एहसान करो, उससे उम्मीद न रखो। हमने 70 दरवाजे रखे, वो उस दरवाजे से उम्मीद रखो जिस दरवाजे पे तुमने एहसान किया है। उस दरवाजे को छोड़ के हम तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहे हैं। तो वो एक जिसको कहते हैं कि वो रहीम है, तो वाकई रहमतों का वो अगर है तो वो सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं, जो अपने हमारे वालिदैन से भी ज्यादा अपने बंदे को चाहते। जी 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 बहुत अच्छी बात आपने अभी कही कि जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, जो परेशान है, जो लोग गरीब हैं, तो इस्लाम का मैसेज भी ये है कि सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई या ईसाई हो, तो हम सबको आगे आना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए जितने भी गरीब हैं, ताकि जो इस्लाम का एक मैसेज है वो पूरी दुनिया तक जाए कि इस्लाम शांति और अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल सही बात है, और हम सही बात है कि हुसैनी पैगाम भी यही है। इंसान को दीदार तो होने में दो, हर कौन पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक इस वक्त अगर आपको हुसैन की प्यास को याद दिलाना है पूरे विश्व को, तो हर शिया को एक छोटी मोटी सभी अपने स्तर से पानी की, प्याऊ की, जलपान की कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए कि हम लोग बहुत ही कोमल वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये एक शियती एक ऐसा है कि जहां आतंकवाद का क्षमा भी नहीं है, तो हम साबित करें कि शिया ऐसे होते हैं। बेहतर है हमारा मैसेज। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर साहब एक सवाल और यहाँ से निकल कर आ रहा है कि अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम ने सबसे ज्यादा अगर हमें जोर दिया है तो उसने एजुकेशन पर जोर दिया है कि हर इंसान जो है वो एजुकेशन हासिल करके एक आला मकाम हासिल करे और बहुत ऊंचाइयों तक जाए, बुलंदियों तक जाए। एजुकेशन के हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप अपना पैगाम जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, इस वक्त आपको सारे लोग सुन रहे हैं, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान, सारे लोग इस प्लेटफॉर्म की वजह से आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप इस्लाम एजुकेशन की बात है तो उसके हवाले से भी जरूर बताएं। जी हम जानते हैं क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल तब तक नहीं होता जब तक वो अपने धर्म का, अपने मजहब का सही मानों में
पालन न करे, सही मानों में उसका फॉलोअर्स न बने और साहिब ईमान तब तक नहीं होगा। इसलिए जो चीज आपने कही तो ये बहुत आम चीज है। हम तो समझते हैं कि हमारे क्या तबलीग का जरिया मजालिस है, हमें हुसैन में हम लोग एक चीज से सीख जाते हैं। तो आप ये देखिए हमारे क्या हुक्म है, और ये कहा गया है कि माँ की गोद से कब्र की यानी कि लहर तक आपको अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर हर रस्ते पर आपको इल्म हासिल करते रहना है। एक दूसरी चीज है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जरूर जाए, लेकिन अल्लाह न करे ये जो वुहान में हुआ, जो वुहान से निकला वायरस, ऐसा इल्म 2 कौड़ी का है। मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए कि जो दूसरे की जानों के लिए घातक हो जाता है। हमें वो इल्म चाहिए है कि जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, आओ दरवाजे के जरिए आओ और जो पूछना है पूछो, जो इल्म हासिल करना है। आज आप देखिए सारे उलूम अगर निकले हैं, इमाम अबू हनीफा भी, इससे पूछा किसी ने भाई आपकी उम्र क्या है, 70 साल की उम्र पर उन्होंने कहा मेरी उम्र 2 साल की है। तो उन्होंने कहा भाई ये 2 साल की कैसे? उन्होंने कहा ये 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक के अंडर में उनके शागिर्दी में गुजरे हैं, तो बस ये मेरी जिंदगी है, बाकी जिंदगी में तो मैं कुछ नहीं सीख पाया। तो जो इतना बड़ा आलिम जिसके आगे उसने न जाने कितने उलूम पैदा किए, तो ये शागिर्द किसके? ये हमारे रसूल खुदा के नवासे की नस्ल है जहाँ ये चीज जिसके। और ये इल्म की जहाँ तक की बात है, अब तो बड़ा एक अजीब मसला है कि एक एजुकेशन के अंदर भी इल्म के समुद्र में अब कुछ लोग जो है वो पनडुब्बियों के जरिए भी तैर रहे हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट एजुकेशन हासिल करके एजुकेशन उसमें आ जाते हैं और वो मिसगाइड कर देते हैं। ये कहाँ लिखा है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं आपका हिसाब आपसे लूंगा, आपकी औलाद का हिसाब किताब उसके अमल से होगा, तो कैसे इल्म में डिटेरियोरेशन क्यों हो रहा? सवाल सबसे बड़ा ये है, कैसे मौलवी का बच्चा मौलवी हुआ जा रहा है, टीचर का बच्चा टीचर हुआ जा रहा है, सीए का बच्चा सीए हुआ जा रहा है ना? तो हमें सोचना पड़ेगा कि सर पे टोपी रख लेने से, सर पे अमामा रख लेने से कोई मजहबी रहनुमा नहीं होता। उसके लिए एक गहरी इल्म में जाना पड़ता है, फिक़ह में जाना पड़ता है, नफ्स को पाक करना पड़ता है, जमीन को साफ सुथरा रखना पड़ता है। फिर वो शख्स अगर इल्म हासिल करने के बाद में कहीं पे पैगाम देने के लिए आता है, किसी जगह पे सोशल गैदरिंग पे कोई बात कहता है, तो पहला सवाल ये, क्या ये शख्स खुद अपना उन चीजों का पालन करा दे? अच्छी चीज है। इस्लाम में रसूल खुदा ने कहा कि अगर तुम्हें नसीहत की चीज पे करना है तो ये देख लो कि वो ऐप कहीं तुम्हारे में तो नहीं है, ऐप ही नहीं, अगर वो चीज आदत भी अगर तुम्हारे में है और उस आदत को भी दूसरे में ये आदत ना हो तो अपनी आदत को भी छोड़ना पड़ेगा। ये है इनका मनसबा। और हमारा कहना ये है, मौला अली का एक कौल याद रखिए, उन्होंने एक बात ये कही कि दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे तुम्हें कभी नहीं चला। पहला फिक्रा ऐसा है कि जैसे लगता है ही नहीं कि ये इन्हीं मौला ने कहा कि मैं दुनिया को 3 बखलाफ दे रहा हूँ। लेकिन जब दूसरा जुमला आप सुनेंगे, इसका दूसरा फिक्रा आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। पहला जुमला कह रहा है कि दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है। इट मीन्स मॉडर्न एजुकेशन भी लेना है। ये नहीं है कि चटाई के ऊपर ही जिंदगी गुजारो, ये नहीं है कि अपने बच्चे को केवल मदरसे की इल्म दो, मदरसे के अंदर वो साइंटिफिक इल्म दो कि जाके वो बच्चा जब मदरसे से या मॉडर्न एजुकेशन कहीं से भी निकले तो एक कंप्लीट एजुकेटेड पर्सन निकलना चाहिए, ना कि अधूरा ज्ञान लेके कि एक कट्टरपंथी या ऑर्थोडॉक्स इल्म को लेके नहीं निकलना। इस्लाम एक मॉडर्न इल्म है, लेकिन उसके अंदर सारे शोबे नहीं जोड़े जा रहे। क्यों नहीं जोड़े जा रहे? अब वो जाहिर सी बात है, जब रसूल खुदा ने उस वक्त दिया कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, तो जब उस उम्मत के 73 फिरके हैं तो कोई एक फिरका तो
जरूर होगा जो उसके ऊपर अमल कर रहा होगा। और हर फिरका कहता है कि मैं ही साथ सुपीरियर हूँ। मेरा कहना है इस मामले में सुपीरियर वो है जिसको दूसरे कहें कि नहीं ये है असली उम्मती, असली रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाला। अभी हम कहें अपने आप को कि मैं सुन्नती हूँ, मैं सर पे अमामा रख लूं, बड़ी दाढ़ी रख लूं, ऊंचा पैजामा पहन लूं, लंबा कुर्ता, कुछ नहीं, लंबी शेरवानी जी नहीं, आपका अमल कैसा गुजरा। फिक्रे को इमाम मौला अली ने क्या कहा, दुनिया हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है, लेकिन अपना अमल ऐसा रखो जैसे अभी जाना। इस फिक्रे को सुनिए कि अभी जाना है। इट मीन्स अगर हमारे पास इस वक्त आपसे बात करते वक्त भी मलकुल मौत सपोज कीजिए कुंजी खटखटा के अगर आते होते और इस वक्त दस्तक उन्होंने दिए, मिर्जा साहब मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मुझे आपकी रूह कब्ज करना है, तो मिर्जा साहब ये न करें कि दौड़ के दरवाजा खोलने के बजाय सिक्की चढ़ा दे। जी बिल्कुल सही। खुदा की तरफ से हमें तुरंत कहना चाहिए यस सर यू आर वेलकम, वो हम आपकी रूह कब्ज करने आए, यस सर। उसी हालत में जाना चाहिए, इतना अपने अमल पे, इतना अपने कैरेक्टर पे अपना होना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं जिस शख्स रिजवान से बात कर रहा हूँ मैंने इसकी गीबत की थी तो लाओ इससे माफी मांग लूं, मैंने इसके 10,000 रुपए चुराए थे तो लाओ कम से कम ना दे सकूं तो कम से कम माफी मांग लूं, मैंने इस शख्स के इस बच्चे के यतीमी का मजाक उड़ाया था तो एक बार उतना भी मौका ना मिले। तो ये है मौला अली की जिंदगी। ऐसे इल्म हासिल कीजिए और सलूनी संदी मौला अली के बाद कोई दूसरा मिला ही नहीं। अगर तारीख में हो तो बता दीजिए, मन कुत्तो मौला हो फाजा मौला। खुदा ने हजरत अली के लिए कहा, सहाबा तो बहुत थे लेकिन कहा किसके लिए? असली ये है आज इस्लाम के जो बड़े दायरे, बड़े फिकी मसाइल हैं उसमें एक छोटा सा, हम कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं रसूल खुदा ने जो कहा उस सुन्नत पर हर मुसलमान से तय कर ले कि हमें इंसाफ से काम लेना है। तो आज पूरी दुनिया में सही माने उम्मत मुस्लिमा जिससे रसूलुल्लाह की सुन्नत, तो क़यामत के आसार क्या है? भाई भाई के घरों में लड़ रहा है, ना इत्तेफाकियां छोटी छोटी चीजों के ऊपर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो इंसान जैसी में जाएगी अमल में तो वही आएगी चीज ना। आज आप देखिए शरीयत कदे, अल्लाह उनके ऊपर अपनी हिदायत दे कि वो शरीयत कदो कहने के लायक बने। आज दीनी मदरसे वाकई में दीनी मदरसे कहलाएं, हमें उनको शर्म आती है। हम लोग वो लोग हैं कि अपने साथ साथ हम दुनिया के गैर इस मजहब के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कभी कभी शर्म का मुजाहरा झेलना पड़ता है कि साहब एक शक के दायरे में कि ये मुसलमान है, बड़ी दाढ़ी है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और जरा सा कट्टरपंथी। अरे भाई हमें असली, क्योंकि इल्म के जितने भी उलूम निकले हैं वो रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुकाई है। अपने खाना काबा में हजरत अली पैदा हुए थे तो उनको उन्होंने 4 ज़बानों की तिलावत करके दिखा दी। इमाम हुसैन ने ज़बान चूसी है और संगरेजे बोलने लगे हैं। ये कोई मामूली बात है, ये वो रूहानी बेदुरानी लोग हैं। सही मानों में मैं इतना जानता हूँ कि पूरा कुरान आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पूरे कुरान पे अमल किया ना किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर पूरे कुरान पे हम जैसे जाहिल लोग, हम जैसे कमिल लोग, हम कुरान के मानी नहीं समझ पाते हैं, अरबिक में है लेकिन आम फहम तरीके से उसकी अपनी जबान में मानी जब सुनते हैं तो उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। और सुबह दोपहर शाम 5 वक्त दिन में हम नमाज में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह हम तू ही रहीम है, अर्रहमान रहीम, तू रहमान है, मालिक यौमिद्दीन, आखिरी दिन का मालिक है, ए दिनस सिरातल मुस्तकीम, ए दिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे रख। सीधे रास्ते पे दुनिया से रखने की भी मांग करते और कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वज़ालिम, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वज़ालिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए इय्याका नअबुदु, मुझे उस पे चलाना, वइय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरात, मुझे उस पे न कि जिस पे तूने गज़ब, और हम तेरी इबादत करते हो, तुझे तो मदद चाहते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं और एक तरफ हम
मुशरिक से मांग रहे हैं, मुशरिक पे भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहे हैं जिसने आपको आंख भी दी तो बेऐब दी, कान दिया तो बसीरत के साथ दिया। आपने हर शय अल्लाह की, जिसका एक छोटा सा मिसाल ले लिए, खुदा न करे आज मेरा एक हाथ चला जाए, अब उस हाथ के जाने का एहसास होगा। लेकिन जब अल्लाह ने मुकम्मल जिस्म के साथ आपको दुनिया में भेजा तो हमसे वो कहता है कि सिर्फ तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, यानी कि तुम हमारी पूजा करो, हमारी इबादत करो, और वो कुछ नहीं चाहता है। और दूसरा जुमला है कि हुकूकुन नास, इस्लाम को देखना है दो चीजों में देख लो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन नास। यानी कि अल्लाह ने खल्क को किया है, सिवाय उसकी तारीफ, सिवाय उसकी प्रेज, एवरी प्रेज लीड्स गॉड। मिर्जा की तारीफ नहीं है, मिर्जा का अगर किरदार और अमल अच्छा होगा तो वो अल्लाह है कि अल्लाह ने हमारे दिल को इतना पाक किया। अगर हम गलत हैं तो हमको हमारे पे शैतान हावी हुआ। अल्लाह ने कभी ये नहीं किया कि मेरा बंदा कभी गलत हो जाए। तो हमें इन फिक्रों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है कि आप अपने नफ्स को, अपनी रूह को पाक करके तो देखिए, जब नफ्स रूह पाक होगी तो किसी का दिल नहीं दुखेगा। जब नफ्स रूह पाक होगी आपको लोग आइकॉन समझेंगे। आज टीचर समाज का एक आइकॉन होता है ना, इसलिए होता है कि लोग उससे शिक्षा लेकर माँ तो गोद में से बच्चे को निकाल के टीचर्स की गोद में दे देती है, वो समाज में उसको खड़े होने के लायक बनाता है, इसलिए उसका इज्जत होती है। बिल्कुल क्या आज हमें, लेकिन ये कि इस तरीके की चीजें आज हम भाईचारा बिल्कुल, लेकिन मुकम्मल आलिम वही है जिसने किसी इंसान की जिंदगी को संवार दिया। और ये भी समझना चाहिए कि अगर हमने अपने घर में, मेरे अपने छोटे पढ़ लिख नहीं पा रहे, मॉडरेट चाहे रिलीजियस इल्म अगर नहीं दे पा रहे और हमने कोई कोशिश नहीं की तो हम गुनहगार होंगे। हमने कोशिश की और वो इल्म नहीं हासिल कर पा रहे तो हम गुनाहगार होंगे। हमें अपने अखलाक को ऐसा पेश करना चाहिए जो रसूल अखलाक है, हमें वैसा पेश करना चाहिए जो इमाम हुसैन की हमारे 12 इमाम सीरत थी। हमें इंतजार करना चाहिए कि हमारे 12वें इमाम आए। आज हम इमाम बाड़े हाथ रख के इन हालात में कहते हैं, हे अल्लाह, मैं इमाम जमाना को उस हाथ के ऊपर, इमाम बाड़े काबे के ऊपर हाथ रख के मैं कहता हूँ, ए मौला, मैं आपकी बैत अभी कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं मर जाऊं कब आपका ज़हूर होगा, मैं कब्र में हूँ कब ज़हूर होगा, कि कल हो जाए हम नहीं जानते। तो खुदा के हुक्म से होना है। और जो हालात दिख रहे, जो अल्लाह सबको जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे, इस वक्त के हालात जो हालात है लॉकडाउन के, जो कोरोना वायरस आया है, आप इस तरह के इम्तिहान की नहीं मानिए। ये सोचिए कि हर उस शख्स का इम्तिहान है जिसकी तिजोरियों में पैसा रखा है, हर उस शख्स का इम्तिहान है जिसके पास गाड़ी है, और उस शख्स का इम्तिहान है जिसके पास जखीरा है खान पान का, कि वो उन गरीबों तक पहुंचाए, वो उन जरूरतमंदों तक पहुंचाए। अगर आपके पास गाड़ी है तो 1 किलोमीटर किसी को आगे पहुंचा दीजिए। आज कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। आप मजदूर सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि गरीब से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता है। और अल्लाह ने गरीब दी है तो उसमें भी गरीब का इम्तिहान लिया है। अल्लाह ने अमीरी दी है तो उसके लिए अमीरी का इम्तिहान लिया है। अल्लाह ने और अल्लाह फैसला भी करेगा तो आपके इल्म से करेगा, आपकी जजा और सजा का भी इंसाफ करेगा तो आपके पैमाने से। बिल्कुल सर, जी बेहतर है सर। सर अगले सवाल को भी और हम शामिल करना चाहेंगे, आपके वक्त भी मेरे पास कम है। असल में बात ये कि आपने जितनी भी गुफ्तगू की वो बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, और हमारे जो व्यूअर्स है, जो नाजरीन हैं, यकीनन उन्होंने इस बात पे बहुत गौर किया होगा। और एक बार फिर से हम जो सवाल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यानी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जो आप वहां के वाइस चांसलर हैं, तो सर आप एक बात बताइए कि एजुकेशन को लेकर आपने वहां पर क्या क्या इकदाम किए हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि और बेहतर से बेहतर वहां पर एजुकेशन हासिल हो और लोग वहां ज्यादा से ज्यादा जाकर वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जाएं और जाके अपना एडमिशन करवाएं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपने इधर 2 दिन के अखबारात में देखा हो तो जो
अल्लाह का शुक्र है कि जो कोई नहीं सोचा, वो इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नाम से जो ये यूनिवर्सिटी है, भाषा यूनिवर्सिटी, अल्लाह अपने बंदों के जरिए दिलों में डालता चला जाता है। सीना बसीना जो है, अगर आप में अकीदा और श्रद्धा और विश्वास है तो वो मिलता है। पहली बार इन परिस्थितियों में जब लगन है, मैंने ये पहला काम सोचा, मैंने नहीं कि मेरे साथ जो टीम है, मेरी यूनिवर्सिटी की जो टीम है, उसके साथ डिस्कशन में ये नतीजा निकला। हर बच्चा इंटर पास करने के बाद में ग्रेजुएशन के 10 जगह फार्म भरता है जी, 10 जगह फार्म भरता है, यानी 10,000 रुपया तो कम से कम वो अपना बर्बाद कर देता है प्रोस्पेक्टस अप्लाई करके एडमिशन के लिए। और उसके साथ में लॉकडाउन में कितनी परेशानियों का सामना उसको झेलना पड़ेगा। हमने पहला काम किया इस यूनिवर्सिटी ने कि हमने बच्चे को 11 पास है और 12वें का रिजल्ट न निकला हो या एग्जाम न दिया हो, बीए पास है, ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर में है और आगे एजुकेशन चाहता है, मैंने उन बच्चों के लिए कहा है आप हमारे क्या ऑनलाइन फॉर्म भरिए और सीट को लॉक करिए और 15-16 तारीख से 5 जून तक जो बच्चे सीट लॉक कर लेंगे, हम उनको इंश्योर कर रहे हैं कि हम उनको एडमिशन देंगे, चाहे मुझे सेक्शन बढ़ाना पड़े, चाहे मुझे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स खुलने पड़े, लेकिन जिन बच्चों की सीट लॉक हो जाएगी और वो रिजल्ट आने पर उनके मानक पूरे होंगे, यानी कि ये मतलब ये नहीं है कि फेल हो जाए तब भी हम उनको एडमिशन देंगे, पास हो जाएंगे। और यही ये सीट लॉक करने का जो अमाउंट है मामूली सा 1,000, वो फीस जमा करेंगे, उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं किया कि बच्चे से सीट लॉक करवा रहे और उसके बाद में हम कहें तुम नहीं आए, हम सीट और वो पैसा अलग हो गया, हम फीस फिर ले। जो फीस सरकार ने निर्धारित की है, अल्लाह का शुक्र है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने यहाँ जो भी फीस निर्धारित की है वो रेगुलर मोड की फीस है। आप गौर से सोचिए यूपी के किसी यूनिवर्सिटी में जो फीस चल रही है रेगुलर मोड की, उससे 1 रुपया भी ज्यादा इस यूनिवर्सिटी में फीस नहीं ली जाती है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, ये यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें सेमेस्टर पढ़ाई होती है, जिसमें ऑनर्स की पढ़ाई होती है, जिसमें सीबीसीएस पैटर्न पे आ रहे हैं। आप पूरे यूपी में अगर कहीं भी ऑनर्स कोर्स चल रहा है उसका कंपैरिजन हमारे कैसे कर लिए, हमने सीबीसीएस को सीबीसीएस वाकई उसका हमने स्ट्रक्चर बना के तैयार किया है कि अगर बच्चा कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो वो कहे मुझे अरबिक पढ़ना है तो उसके लिए हमने वो ऑप्शन भी खोला है। अगर उर्दू का बच्चा कहे हमें कंप्यूटर पढ़ना है तो उसके लिए कंप्यूटर का पेपर भी रखा है। अगर हमारा अरबी का बच्चा कहे हमें संस्कृत पढ़ना है तो उसमें सीबीसीएस का असली जो यूजीसी गाइडलाइंस है वो किया है। और यही नहीं है, हमने इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में बीटेक की कोशिश की। हमने इस बार तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस बीटेक भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, एनएफटी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है। इस साल तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर भी उतर के आ गए, हम इस पे भी चलाएंगे। हमने कहा कि हमें सरकार अगर क्योंकि अब सरकार की पॉलिसी क्यों जरूरी है, हमेशा आप भी अगर आपका भी बच्चा होता है तो 18 साल के बाद तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि अब ये कमाऊ पूछ हो जाए। उसी पर यूनिवर्सिटियां 20 साल के बाद में अगर यूनिवर्सिटियां सही दिशा में जा रही हैं तो कम से कम उनको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने इनकम के सोर्स जनरेट करना चाहिए। तो हमने इस बार साइंस की शुरुआत कर दी है कि हम आपका केमिस्ट्री भी खोल रहे हैं, बीएससी ऑनर्स में फिजिक्स भी खोल रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी भी खोल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी खोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी खोल रहे हैं। तो इसलिए जिधर जमाना जा रहा है, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उस रफ्तार से चल रहे हैं। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें शासन के निर्देशों का हमने अक्षरशः पालन किया, योगी सरकार के निर्देशों का पालन किया। मेरे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस कंटेंट हमारे सब थ्रू वेबसाइट हमने बच्चे के घर तक पहुंचाए हैं, उनको मैसेज किया कि ये इन कोर्सों का जो है वो आप ई कंटेंट वेबसाइट से अपलोड कीजिए, क्योंकि आज जमाना जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक बात का मैं और इसके मुखालिफ हूँ कि चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो,
चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, ये नहीं होना चाहिए। वहां असली गुलदस्ता तो वही होता है समाज के लिए जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर तरीके के लोग, हर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ाने वाले भी हर वर्ग के होना चाहिए, पढ़ने वाले भी हर वर्ग के होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रथा है। अभी सरकार ने एक बड़ा, इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय जो रखा है वो इसलिए नहीं रखा है। आज हमारा बच्चा बीए करता है, आप उसको गल्फ को भेज देते हैं, वहां अरबिक नहीं जानता, तो हमारे क्या अरबिक कोर्सेज है। इसी तरह कोई बच्चे को रशिया में आपके चचा अगर है तो वो हर चचा चाहता कि मेरा भतीजा रशिया में आ जाए। किसी का मामू अगर जर्मन है तो उसका बच्चा, उसका भांजा चाहता है कि मुझे मामू जो है जर्मन में बुला ले। तो आइए हम इस यूनिवर्सिटी में न जाने कितनी फॉरेन लैंग्वेज खोलने जा रहे हैं, हम नेशनल और इंटरनेशनल न जाने कितनी लैंग्वेज खोलेंगे कि अगर आपको तेलुगु में भी, तमिलनाडु में भी, चेन्नई में भी अगर आपको नौकरी करने का अवसर मिल रहा है और अच्छा इंटरव्यू आप दे सकते तो हम जल्दी ही तेलुगु भी यहाँ खोलेंगे, हम संस्कृत भी खोल रहे हैं, हम भूटानी भी खोल रहे हैं, हम यही नहीं, हम प्राकृत और पाली भी खोल रहे हैं, हम अवधी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम कोरियन पे भी फोकस कर रहे हैं, हम चाइनीज पर भी फोकस कर रहे हैं। अगर आप अपनी ग्रेजुएट की डिग्री के साथ साथ कोई फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप कमांड लेके निकलेंगे, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे नौकरी नहीं मिली, जो ये कहे कि मेरे पास विजन नहीं है। अगर बिजनेस लाइन में जाएगा तो परफेक्ट बिजनेसमैन बनेगा, इंटरव्यू में जाएगा तो एक मजबूत एंटरप्रेन्योर बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, और यही नहीं है एजुकेशन में भी जाएगा तो एक कामयाब एजुकेशनिस्ट बनेगा। ये और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने रिसर्च की असली चीज तहकीक, अगर तहकीक सही होने लगे और तहकीक के जो मशवरे आए उसके ऊपर सही अमल हो जाए तो हिंदुस्तान अपने आप में इतनी पोटेंशियल रखता है कि कोई उसको रोक नहीं सका डेवलप नेशन होने से। ये चीज आपने पहली बार देख ली कि इस परिस्थिति में, कोरोना के समय में, आज दुनिया में हिंदुस्तान की इम्यूनिटी सिस्टम भी कितना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इसमें सारे समाज, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग इसलिए हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जब कोई बात पड़ती है तो उस वक्त सारा धर्म पीछे हो जाता है। आज आप देखिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन ने एक नए धर्म का जन्म दे दिया, उस धर्म का नाम है मानव धर्म। आज हिंदू मुसलमान की मैयत पे फख्र से कहा दे रहा है कि मेरा पड़ोसी में इस हिंदू भाई के घर का कोई हिंदू नहीं है, तो मुसलमान कहा दे रहा है। मुसलमान घर में कोई अगर जा रहा है तो हमारे हिंदू भाई, यानी कोई रिलीजन की कास्ट एंड क्रीड हट गई। यही अल्लाह चाहता है, यही भगवान चाहता है, यही राम चाहते हैं, यही रहीम चाहता है, यही रसूल चाहते हैं, यही मोहम्मद चाहते हैं, यही हजरत ईसा चाहते हैं, यही हजरत मूसा चाहते हैं। ये सोच होना चाहिए हमारे हर इंडियंस में, और हर इंडियंस में ये सोच आना चाहिए हम सब भाई हैं। और एक छतरी की मानी है, छतरी जो हाथ में पकड़ते हैं इसकी जो नोक है ये इसमें एक ही डंडी है, और जो तीलियां इसमें जुड़ रही हैं ये है मजहब। और जब ये छतरी अगर हम अपने सर के ऊपर हैं तो चाहे जितनी बड़ी भी अगर कोई चीज आ रही है तो आपके सर को, आपके मस्तिष्क को, जहां से आपके सोचने और समझने की शक्ति डॉक्टर साहब उसके ऊपर सही फैसला लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं समझता हूं कि मैं फख्र समझूंगा अपने आप को ये बताना कि जो दुनिया में सबसे कमजोर इंसान होता है, चाहे मजदूर शहर का हो चाहे गांव के किसान है, जो सबसे कमजोर होता है, मैं उस बाप का बेटा जिसने फाके करके अपनी एजुकेशन यहां से अलीगढ़ तक हासिल की, और जब इंटरव्यू हुआ तो 8 को सुपरसीड करके, अल्लाह का शुक्र है ये मामूली शख्स का सिलेक्शन हुआ। जिंदगी में ये जरूर सोच लिया कि जब एजुकेशन ने कदम नहीं रखा था उस वक्त एक अहले बैत लाइब्रेरी नाम की बिना डाली थी, जिसमें एक किताब से हमारे मोहल्ले के बच्चों ने शुरू की थी। आज 10,000 किताबें हैं, इसमें 5,000 किताबें हैं, जिसके अखराजात अब मैंने डॉक्टर सादिक साहब से कहा इस यूनिवर्सिटी इसके अखराजात आप उठाइए सुबह शाम, तो वो लाइब्रेरी के बानी है हम। क्यों? क्योंकि हमको अब माँ की आगोश में जब कभी आप किसी चौराहे पे इंसल्ट कर दिए जाएं
कि जाहिल बेबाक की औलाद हो, जाहिली रहोगे चाहे जितना पढ़ जाओ, तो हसास इंसान के जहन के ऊपर लश्कर का काम करने की। मैं वो चीजें झेल चुका हूं, मैं उन गहराइयों में नहीं जाऊंगा। तो मैंने भी सोचा कि अल्लाह मुझे वो मकाम दे कि मैं अपनी आने वाली समाज की, देश की उस जनरेशन के काम आऊं। मैं अगर आपकी तो कह आधा घंटा, वरना एक पॉइंट के ऊपर मुझसे 4 घंटे आप बुलवा लिए, और एक जुमला भी गलत बोलूंगा, एक जुमला भी दाएं बाएं नहीं करूंगा, वो फिक्र रखता हूं। तो जब 46 के अंदर मैंने कदम रखा तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा पहला क्लास वो था कि उस वक्त मेरे से 6 साल से ज्यादा बड़े लड़के क्लास में होते थे, और जब पहले क्लास से पूछा तो पता चला कम से कम 20 से 25 लड़के वो थे कि जिनकी शादी हो गई थी, उसमें 4-5 थे कि जिनके बच्चे थे। तो उस वक्त सिर्फ खड़े होने की जगह मिली थी। रूम नंबर 61 या 62 में हमारा क्लास होता था। तो वो परफॉर्मेंस, उस चीज को जो मैंने देखा, तो एक पढ़ाना और पढ़ना एक अलग टेक्निक्स अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे दी। मैं पढ़ा भी वैसे, मुझे नौबस्ते के, लखनऊ के नौबस्ते के, मंसूरनगर नौबस्ते के सिया साहब वो शख्स है कि जो प्रॉब्लम बनाता था तब सॉल्व करता था। अकाउंट्स में, कॉमर्स में मैं उस टीचर से पढ़ा हूं कि प्रॉब्लम भी बना के सॉल्व करो। आंसरिंग द क्वेश्चन इज इजी, बट टू मेकिंग द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमको कहते थे कि देखो क्वेश्चन में अच्छी अकाउंट्स में प्रॉब्लम बनाओ कि क्या क्या आ सकती है। तो उन्होंने वो दिमाग जनरेट कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज में जागती है। शेख कॉलेज में जिस दिन से मैं रहा हूं, एक तो ट्रांसपेरेंट कैरियर का, सैलरी के अलावा 1 रुपया भी हराम है, हराम है। ऐसी जिंदगी गुजारी शेख कॉलेज में, क्लास कभी छोड़ा ही नहीं। मेरे बच्चे जानते थे आंधी आए, तूफान आए, सुबह 7:30 बजे का क्लास को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मिर्जा खड़े हुए क्लास मुझे क्लास में मिले ही मिलेंगे। बच्चे भी मिलते थे और मैं भी होता था, जिसका मुझे इतना बड़ा हुआ कि कल आने वाले शेख कॉलेज में जो सबक सीखा, जो कलम से जोड़ा, क्यों हमें अपने खानदान की, अपनी नस्ल से जिहालत के ठप्पे को हटाना था। आगे की चीजें ऐसी आई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नाम की एक यूनिवर्सिटी बनी। मैंने एनओसी लेके उसमें अप्लाई किया, और मेरे पास एनओसी के साथ मैंने अप्लाई किया। मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि मैंने किसी की लाइफ में बुराई नहीं की। इन 5 जय्यद उलमाओं के, अपने कौम के 5 को हमेशा गुलाम पंजतन कहा, चाहे वो कल्ब साजिद साहब हो, चाहे मौलाना बरूही साहब हो, चाहे कल्ब जवाद साहब हो, चाहे हमीदुल हसन साहब हो, चाहे मिर्जा मोहम्मद अतहरी साहब क्यों ना हो। मैंने इनको ये कहा कि ये हमारी कौम के नूर है, इनको गुलाम पंजतन का दर्जा देता हूं। मेरी स्पीच दरगाह के अंदर की भी आप सुन सके, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि उनके बाद की नस्लें जो आएंगी वो इस तरीके का जुल्म करेंगी। बस माफ कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र है कि इस ख्वाजा ने अपनी रहमत की कि उनका आओ हम तुमको अब शेख कॉलेज के लायक नहीं समझते हैं, तुम्हारे लिए एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और उसका मौजूदा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर, फाउंडर, प्रोफेसर, हेड वीर हो गया। मैं तो ये उम्मीद रखता था कि मेरे पास शेख कॉलेज से कोई एक चिट्ठी आएगी कि माफिता साहब आपको नवाजा जा रहा है, आप हमारी क्या की प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आज जो कुछ हूँ शेख कॉलेज की बदौलत हूँ, आज जो कुछ हूँ शेख कॉलेज के हालात की बदौलत हूँ, आज जो कुछ मेहनत की बदौलत हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे शेख कॉलेज का रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसने ये तक के लिख दिया था कि ये सीए फाउंडेशन का कुछ शुरू कीजिए, और मैं डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर will forego their honorarium if this institution, if it is both even in host। तो आज भी वो कागज लिखा हुआ है। क्या ऐसे सिले मिलते हैं? मैं बोर्ड ऑफ स्टडी के हर मेंबर से ये कहना चाहता हूँ, इंसाफ करो, शेख कॉलेज को आगे बढ़ाओ, इंसाफ करो, शेख कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाओ, इंसाफ करो, शेख कॉलेज ऐसा प्रोडक्ट निकालो जो हुसैनी भी कहलाए, मोहम्मदी भी कहलाए और ह्यूमनी भी कहलाए। हमें वो चाहिए है, देश का समाज चाहिए है। आज अफसोस हो रहा है कि आप एक छोटा सा लंगर करके देखते हैं, आपकी गरीबी आपके सामने सब करके बोलती है। आप एक छोटा सा तबर्रुक बांटते हैं, आपको गरीबी का अंदाजा हो जाता है। आप एक छोटी सी मजलिस पढ़ते हैं, आप देखिए समझ में आया नहीं, वाह 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 मौलाना, वाह मौलाना। क्या वो दौर भूल गए
कि जब मीर अनीस के वक्त में एक मरसिया पढ़ा रहा है, अब जो देखा कि पूरा मजमा वाह वाह कर रहा है और उसमें एक आगे बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ, सर झुकाए बैठा हुआ है, उसको 100 लोगों की तारीफ इतनी अच्छी नहीं लगी जो एक बुजुर्ग की सर झुका के खामोशी अच्छी लगी। और उसने अब जो थोड़ी देर के बाद सर उठाया, उसने कहा सुभान अल्लाह, ये मिसरा है, ये है इल्म कि जिसमें पहले मिसरे में जितने जबर हैं उतने ही दूसरे मिसरे में हैं, जितने जेर हैं उतने ही दूसरे मिसरे में हैं, जितने पेश हैं उतने दूसरे मिसरे में, जितने स्वाद हैं उतने ही स्वाद लीजिए, जितना सीन है। तो ऐसा शिया मजहब होना चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में शियों की अपनी अलग पहचान है, वो दूर नहीं, अल्लाह ने चाहा शिया कॉलेज भी तरक्की करेगा। हम सब उस शिया कॉलेज की तरक्की के लिए जब शिया कॉलेज को जरूरत होगी हमारा तन मन धन खून भी शिया कॉलेज के लिए दूंगा, क्योंकि वो मेरी पहली रोजी का पहली टुकड़े का एक जरिया बना है। उस शिया कॉलेज में उन बुजुर्गों को भी मैं दुआ दूंगा कि जिन्होंने अपने जेवर बेच के इस शिया कॉलेज की नींव में पैसा लगाया। वस्सलामु अलैकुम। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते।